Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in today's lecture, we will start unit number 5, which is a poem, Daffodils. There are only 2 poems in your syllabus. The first one is Daffodils and the second one is Stopping by Woods on a Snowy Evening. In today's lecture, we will study Daffodils. The poem Daffodils, the writer of the poem is William Wordsworth, an American poet. William Wordsworth was born on April 7th, 1770 and died on 15th April 1850. William Wordsworth is known as romantic poet. Romantic here means that he is a great lover of nature. He enjoys the every aspect of nature, every move of nature, कि वो फितरत की छोटी सी छोटी चीज से भी लुत्फानंदोज होता था. According to William Wordsworth, nature is a teacher or preacher. उसके ख्याल में फितरत हमें हर वक्त हर लम्हा कुछ ना कुछ सिखाती रहती है. This poem Daffodils is also one of his nature poems. This poem is actually a tribute to nature. In this poem, William Wordsworth describes his own experience, that what he feels, observes and imagines when he happens to pass by daffodils. कि जब वो डैफोडिल्स के पास से गुजरा तो उसने क्या क्या चीजें फील की. उसने बहुत ही खूबसूरती से उन तमाम चीजों को जो उसने ऑब्जर्व की इस पोएम में बयान किया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पैराफ्रेज. The poem Daffodils has 4 stanzas. Let's discuss the 4 stanzas one by one. Okay, so let's start with the first stanza. I wandered, मैं घूम रहा था, lonely तन्हा, as a cloud, बादल की तरह, that floats, जो तैरता है, on high over vales, वादियों पर, and hills, पहाड़ों पर. When all at once, कि अचानक, I saw a crowd, मैंने एक हजूम देखा, a host, लातदाद, of golden daffodils, सुनहरी नरगिस के फूलों का. बेसिकली जो नरगिस के फूल होते हैं वो येलो कलर में होते हैं, लेकिन यहाँ पे राइटर ने बात को एक्सेजरेट किया है तो उसने डैफोडिल्स को गोल्डन डैफोडिल्स कहा है. बिसाइड्स, करीब, द लेक, नदी के, बिनिथ द ट्री, बिनिथ नीचे, द ट्री, दरख्त के, फ्लटरिंग, खुशी से झूम रहे थे, एंड डांसिंग, नाच रहे थे, इन द ब्रीज, हवा में. In the first stanza, the poet says that once he was wandering all alone, his wandering was just like a cloud that floats over the vales and the hills. At once he saw countless daffodils. Again, a host of daffodils means countless daffodils. लातदाद बेशुमार उसने सुनहरी नरगिस के फूल देखे. Besides the lake and beneath the tree, जो के नदी के पास और दरख्त के नीचे थे. Fluttering and dancing in breeze, वो हवा में खुशी से नाच रहे थे. In the second stanza, the poet says, continuous, लगातार, as the star, सितारों की तरह, that shines, जो के चमकते हैं, and twinkle, टिमटिमाते हैं, on the milky way, कहकशां पर. They stretched, वो फैले हुए थे, means नरगिस के फूल फैले हुए थे, in never ending line, ना खत्म होने वाली कितार में. Along the margin, किनारे के साथ, ऑफ अ बे, झील के. 10,000, 10,000, सा आई एट अ ग्लैंस, मैं एक नजर में देख सकता था. टोजिंग, झूम रहे थे, देयर हेड्स, उनके सर, इन स्प्राइटलिंग, मस्ती भरे, डांस, नाच से. इन द सेकेंड स्टैंजा, the poet says that the daffodils were like those stars which shines on the Milky Way. The daffodils were stretching up to the endless line, कि वो ना खत्म होने वाली कितार तक फैले हुए थे. They were growing beside the lake. The poet says that they were near 10,000. शायर कहता है कि वो करीबन 10,000 के करीब थे. They were moving their heads in happy dance. In the last line, the poet says that the daffodils were moving their heads in a happy dance, कि वो खुशी से नाचते हुए अपना सर हिला रहे थे. थर्ड स्टैंजा, द वेव्स, लहरें, बिसाइड देम, उनके साथ, डांस्ड, भी नाच रही, बट दे, मगर वो, आउटडिड, बाजी ले गई, द स्पार्कलिंग वेव्स, स्पार्कलिंग, नूरानी, वेव्स, लहरों से, इन ग्ली, खुशी में. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, कि झील की लहरें भी खुशी में डांस कर रही थी, नाच रही, मगर नरगिस के फूल उन नूरानी लहरों से भी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे. अ पोएट, एक शायर, कुड नॉट, क्या कर सकता है, बट बी गे, खुश होने के अलावा. इन सच अ जोकन, इतनी पुरलुत्फ सोहबत में, आई गेज्ड, मैं देख रहा था, एंड गेज्ड, देखता ही जा रहा था, बट लिटिल थॉट, मगर बिल्कुल ना सोचा, व्हाट वेल्थ,
द शो टू मी हैड बॉट, कि ये नजारा मेरे लिए कितनी बड़ी नेमत लाया था। इन द थर्ड स्टैंजा बेसिकली द पोइट कंपेयर डांस ऑफ द वेव्स ऑफ द लेक एंड डैफोडिल, के शायर इसमें झील की लहरों और नरगिस के फूलों के नाच का मुवाजना करता है। इन द थर्ड स्टैंजा द पोइट सेज दैट द वेव्स ऑफ द लेक वर आल्सो मूविंग एंड डांसिंग हैप्पीली बट द डांस ऑफ द डैफोडिल्स वर सुपीरियर टू दैट, कि जो झील की लहरें थी वो भी रक्स कर रही थी मगर नरगिस के फूलों का रक्स, उनका नाच उन लहरों से भी ज्यादा खूबसूरत था। द पोइट बिकम वेरी हैप्पी इन सच अ ब्यूटीफुल कंपनी, ही वेंट ऑन लुकिंग एट देम एंड डिड नॉट नो द परमानेंट प्लेयर ही हैड, कि उसे मालूम नहीं था कि इसे किस कदर मुस्तकिल खुशी हासिल हुई थी। फॉर ऑफन, अक्सर, व्हेन ऑन माई काउच, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, इन अ वेकेंट, हाली, और इन पेंसिव, अफसुर्दा मूड, हालत में, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, कि अचानक वो मेरी सोच में, मेरे तस्वुर में समा जाते हैं। क्या समा जाता है? नरगिस के फूलों का जो मंजर उसने देखा वो उसके दिमाग पर, उसके तस्वुर में समा जाता है। Which is the bliss, जो कि राहत है, of solitude, तन्हाई की। And then my heart, तब मेरा दिल with pleasure fills, खुशी से भर जाता है, and dance, झूमने लगता है, नाचने लगता है, with the daffodils, उन नरगिस के फूलों के साथ। In the last and the fourth stanza, the poet says that whenever he is in sad mood, the sight of those daffodils comes to his mind and his heart feels pleasure. And he feels pleasure, कि वो जब भी गमज़दा होता है, जब भी अफसुर्दा होता है, तो वो उन नरगिस के फूलों का मंजर याद करता है, तो उसका दिल जो है खुशी से झूमने लगता है उन नरगिस के फूलों की तरह। After reading the poem, we can say that the poem presents the happy mood of the poet, as well as the happy aspect of nature. The poem Daffodils is full of imagination. इस सिलसिले में मुस्तंसर हुसैन कहते हैं कि इस नज़म को पढ़ने के बाद मैं कई अरसा तक उसके शहर में मुब्तला रहा, लेकिन जब मेरा उस जगह जाना हुआ तो मैंने सिर्फ चंद आम नरगिस के फूलों के अलावा कुछ नहीं देखा। तो इससे क्या साबित होता है कि ये पोएम क्या है? फुल ऑफ इमेजिनेशन है। ये सिर्फ शायर की, राइटर की इमेजिनेशन थी कि नरगिस के फूलों के एक आम से मंजर को इतनी खूबसूरती से बयान किया है। स्टूडेंट्स, आई होप दैट द पैराफ्रेज ऑफ द पोएम विल बी क्लियर टू यू। Inshallah, we will study the summary of the poem in the next lecture. Take care of yourselves. Allah Hafiz.